Hello. In the previous video, related to t-test, we had learned test of significance for difference of means, in which I had taught you two examples which were based on when the observations are not related with each other. In that previous video, we had discussed the formulas based on when the observations are not related with each other and when the observations are related with each other, or we can say they are correlated or associated with each other. So here in this video, we'll see how we can solve the examples based on when the observations are correlated, and also I'll cover the last test based on t-test, which is test of significance for correlation coefficients. Let's start with the first example. A certain injection administered to 12 patients resulted in the following changes of blood pressure. The values are given to us. Can it be concluded that the injection will be in general accompanied by an increase in blood pressure? The first question that would arise in your mind is that how would I identify that this question is based on when the observations are correlated or associated with each other. तो यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे दिया गया है दैट इंजेक्शन से ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ रहे हैं. दैट मीन्स कि इंजेक्शन एंड ब्लड प्रेशर में कुछ ना कुछ रिलेशन हुआ. सो दिस इज़ द वे यू विल आइडेंटिफाई कि ये जो मेरा एग्जाम्पल होगा दैट विल बी बेस्ड on when the observations are correlated or associated with each other. Then here you can see a single set of values is given to me. Single set of values, ये कैसे पता चलेगा? अगर x और y की वैल्यूज़ आपको दी होती तो 2 sets of values would have been given to you. बट यहाँ पे क्योंकि मुझे एक ही सेट ऑफ वैल्यूज़ दी गई है, इसका मतलब क्या है कि मुझे डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई दे दिया गया है. आई वुड अगेन रिपीट दैट मुझे डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई दिया गया है इस क्वेश्चन में, विच मीन्स दैट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट डी, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, विच इज़ डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई. अगर इसी क्वेश्चन में मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज़ अलग से देनी होती तो ये लोग क्या करते? दे वुड हैव रिटन बिफोर इंजेक्टिंग द पेशेंट्स these are the values and after injecting the patient these are the values. So they would have written it like that. या तो फिर लिखा होता कि the final blood pressure these are the values and the initial blood pressure these are the values. तो हम लोग क्या कर लेते? दैट फाइनल ब्लड प्रेशर माइनस इनिशियल ब्लड प्रेशर, इससे हमें कौन सी वैल्यूज़ मिल जाती? डी की वैल्यूज़. डी तो हमें फाइंड करना ही है बिकॉज द फॉर्मूला फॉर टेस्ट स्टेटिस्टिक विच आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस वीडियो इज टी इज़ इक्वल टू डी बार अपॉन एस अपॉन अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन. तो मुझे डी तो फाइंड करना ही है. सो डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई. अभी इस क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली डी की वैल्यू दे दी गई है. जब हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ दी है तो हम क्या करेंगे? डी इक्वल टू एक्स माइनस वाई कर लेंगे. एक्स माइनस वाई वो इंडिकेट क्या करेगा? इट इज़ द चेंज इन ब्लड प्रेशर बिकॉज फाइनल ब्लड प्रेशर माइनस इनिशियल ब्लड प्रेशर, मतलब अल्टीमेटली वी आर फाइंडिंग द चेंज इन ब्लड प्रेशर. अभी यहाँ पे बात करते हैं एन की वैल्यू. सो 12 पेशेंट्स आर देयर, दैट मीन्स एन इज़ इक्वल टू 12 इज़ गिवन टू अस. देन डी की वैल्यूज़ मेरे पास है. सो सिंपली आई कैन फाइंड सिग्मा डी. सिग्मा डी दैट इज़ इट विल बी द समेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़. And sigma d upon n, that is, now I'll just for sigma d I'll add all of these values. On adding these values we get the total as 31 and we'll divide it by n, which is 12. So 31 by 12 it will be equal to 2.58. So this is my d bar value. Sigma d, which I already told you, which is 31, and we also need to find sigma d square because we'll need it to find our sample standard deviation, that is s is equal to under root of sigma d square upon n minus sigma d by n whole square.
So here I'll need both of the values, which is sigma d square and sigma d. In order to find sigma d square, all you need to do is just you'll square up all of the individual values, that is 5 square, 25, 2 square 4, 8 square 64, minus 1 square 1. Like that you will add. You'll square up the values and then you'll add all of the values. So on adding the squares of these values, we get the answer as 185 divided by 12 minus 31 by 12 whole square. 31 by 12 whole square you can write, or you can even write it as 2.58 whole square, because sigma d by n is ultimately d bar. So we get the answer as 2.96. That is, S is equal to 2.96. Then our steps are the same, 6 steps that we need to follow. First step is null hypothesis. H naught, right now I'm writing it as mu equal to 0, but I'll tell you at the end of the example how you need to write the null hypothesis and alternative hypothesis. Right now, just keep it as h naught mu equal to 0, and alternative hypothesis, since mu is equal to 0, we'll take it as mu not equal to 0, which will have two things left for us. Either mu is greater than 0 or mu is less than 0. So here h naught mu equal to 0, that is, we'll write mean blood pressure has not increased. Then the next step, that is alternative hypothesis. Alternative hypothesis will be h1 mu is greater than 0, and this will be one-tailed test, which is right-tailed test. Here in the question it is written that can it be concluded that the injection will be in general accompanied by an increase in blood pressure. It is written increase in blood pressure, so we have taken it as mu is greater than 0. And null hypothesis and alternative hypothesis, how to write that, I'll be discussing after completing all of the 6 steps. The level of significance, alpha is 0.05, assumption. Now talking about the test statistic, T is equal to d bar upon S upon under root of n minus 1. So d bar we have obtained it as 2.58. Value of S we have obtained it as 2.96 upon n is 12. So here on solving this, we'll get test statistic T equal to 2.89. Then it will be better if you keep a habit of writing it in mode. I have also told this in my previous videos. So mode T equal to 2.89. Then critical value nu is equal to n minus 1. We have this formula. So 12 minus 1, which is 11. Now T 0.05 for one-tailed test. Here in the table, we'll see the value in the fourth column, as it is 0.05 and one-tailed test. So the value corresponding to 12 comes out to be 1.782. But just don't make this mistake. We have n minus 1, which is 12 minus 1, that is 11. So our value will be 1.796. So always have a habit of rechecking the values that you take from the table, because अभी जैसे हमने देखा कि अगर आप लोग न्यू इक्वल टू 12 समझ लेते तो मेरी वैल्यू अलग हो जाती, बट एक्चुअली में मेरा न्यू क्या है, इट इज़ 11. सो T 0.05 आना क्या चाहिए, और आप क्या लिख लोगे. So it's better that you keep a habit of rechecking the value that you write from the table. Here, mode T is 2.89 and T 0.05 is 1.796.
that is t is greater than t 0.05, null hypothesis is rejected. We can write that the injection will be in general accompanied by an increase in blood pressure. In null hypothesis, we had assumed that the mean blood pressure has not increased, but क्योंकि मेरा null hypothesis reject हो गया है, इसका मतलब मुझे क्या समझना पड़ेगा कि मेरा mean blood pressure increase हो रहा है. That is, in the question it was asked to me, the same thing I'll write here as a statement that injection will be in general accompanied by an increase in blood pressure. Now, कमिंग टू नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग 6 स्टेप्स हो जाए उसके बाद डिस्कस करेंगे. उसका रीज़न ये था कि कुछ रेफरेंस बुक्स में अलग तरीके से डिनोटेशंस दिए हुए हैं और कुछ रेफरेंस बुक्स में अलग तरीके से दिए हैं. तो हम लोग दोनों ही चीज़ें देख लेते हैं. नल हाइपोथेसिस, पहली चीज़, म्यू डी equal to 0. Let me explain you this. कुछ बुक्स में ऐसे लिखा है that mu d equal to 0, you have to take it like that. और कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है that you have to take it as mu1 equal to mu2, जो हम डिफरेंस ऑफ मीन वाले सम्स में लेते हैं, जो प्रीवियस वीडियोस में भी हमने लिया है, आपको वैसे लेना है. तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू कि दोनों ही चीज़ें सही है एंड कैसे सही है वो देख लेते हैं. हियर आई एम राइटिंग दिस दैट म्यू डी का मतलब क्या है, इट इज़ इक्वल टू mu1 माइनस mu2. म्यू डी खुद क्या है, इट इज़ इक्वल टू mu1 माइनस mu2. एंड वेन एवर आई राइट कि म्यू डी इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब अल्टीमेटली हो जाएगा क्या, mu1 माइनस mu2 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि म्यू डी इक्वल टू 0 है और म्यू डी क्या है मेरा, mu1 माइनस mu2. तो अल्टीमेटली mu2 को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँ तो mu1 इक्वल टू mu2 हो गया. और दूसरी चीज़, जब मैं इंक्रीज़ की बात कर रही हूँ तो इंक्रीज़ तो मुझे क्या लिखना है कि म्यू डी इज़ ग्रेटर दैन 0. मैं कंपेयर किसके रेफरेंस में कर रही हूँ, तो 0 के रेफरेंस में. सो म्यू डी इक्वल टू 0, दैट इज़ माई नल हाइपोथेसिस. इन सम रेफरेंस बुक्स इट इज़ रिटन एज mu1 इक्वल टू mu2. सो दोनों ही चीज़ें सही है. आइदर यू कैन राइट इट एज म्यू डी इक्वल टू 0 या तो फिर लिखिए mu1 इक्वल टू mu2. अभी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं. तो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है दैट अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर लिखा है, दैट इज़ म्यू डी इज़ ग्रेटर दैन 0. आई टेक इट लाइक दैट. अभी म्यू डी ग्रेटर दैन 0 है, म्यू डी होता क्या है मेरा, mu1 माइनस mu2. mu2 को अगर मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँ तो मैं अल्टीमेटली क्या लिख पाऊँगी, दैट mu1 इज़ ग्रेटर दैन mu2. तो अगर आप म्यू डी वाला फॉलो कर रहे हैं तो आपको लिखना है म्यू डी इक्वल टू 0. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप लिखेंगे म्यू डी ग्रेटर दैन 0. या तो फिर अगर आप mu1 mu2 का फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, mu1 इज़ इक्वल टू mu2. और ऑल्टरनेटिव में लिखना है mu1 इज़ ग्रेटर दैन mu2. तो ये चीज़ें थी जो मुझे आपको समझानी थी. नाउ let's solve another example based on when the observations are correlated. Scores obtained in a shooting competition by 10 soldiers before and after intensive training are given below. So here it is written in the table, scores before training, scores after training. इसका मतलब 2 sets of values are given to me, that is x and y are given. पहले मुझे d की वैल्यू डायरेक्टली दे दी थी, अभी मुझे d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. इट इज़ आस्क्ड टेस्ट वेदर द इंटेंसिव ट्रेनिंग इज़ यूजफुल एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अभी मुझे नल हाइपोथेसिस में क्या लिखना है, दैट mu1 इज़ इक्वल टू mu2. एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, इट इज़ आस्क्ड टेस्ट वेदर द इंटेंसिव ट्रेनिंग इज़ यूज़फुल. अभी व्हेन कैन आई से कि इंटेंसिव ट्रेनिंग यूज़फुल हुई, अगर स्कोर्स आफ्टर ट्रेनिंग ज़्यादा आते हैं देन एंड देन आई कैन से कि इंटेंसिव ट्रेनिंग जो दी गई दैट वाज यूज़फुल. इसका मतलब कि mu1 इज़ लेस देन mu2. या तो मैंने अभी आपको सिखाया, दूसरा आप कैसे लिख सकते हैं इसको, दैट mu d इज़ इक्वल टू 0
ऑल्टरनेटिव में क्या हो जाएगा, म्यू डी इज़ लेस देन 0। ये डी लिखना आपको भूलना नहीं है, वो खास ध्यान रखना है आपको। नाउ एज यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड 2 more rows. The third row will be for d equal to x minus y, and the fourth row will be for d square. अभी मुझे x and y की वैल्यूज़ तो दे दी गई है, that is 67 minus 70 which is minus 3, 24 minus 38 which is minus 14, then 57 minus 58 which is minus 1. ऐसे आपको वैल्यूज़ लिख लेनी है। वैसे ही डी स्क्वायर की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, -3 का स्क्वायर विच इज़ 9. सो विल फाइंड ऑल ऑफ द वैल्यूज़ here. Let me just write all the values. You can also find all the values on your calculator along with me while I'm writing the values. So the values are -3, -14, -1, -3, 7, -13, -12, -7, -9, and the last value is 5. I have also written the values of d square. Now your next step will be to add all of these values of the third row. So we'll get sigma d equal to -50. Then here you can see add the values of the fourth row. Will obtain the value of sigma d square which is coming as 732. Then d bar is equal to sigma d by n which is -50 upon 10, that is -5. Then we'll also need the value of sample standard deviation which is small s. S is equal to under root of sigma d square upon n minus sigma d by n whole square. So sigma d square value we have obtained as 732. n की value मेरी जो है it is 10 and sigma d is -50. On solving this we get s equal to 6.94. Then here it is asked test whether the intensive training is useful. So as I have already explained how we'll write the null hypothesis and alternative hypothesis, the same will follow. Here my first step, null hypothesis h naught mu1 equal to mu2, that is we can write that there is no significant effect of intensive training. मतलब इंटेंसिव ट्रेनिंग की वजह से कोई इफ़ेक्ट नहीं हुई है, दैट इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग इन माई नल हाइपोथेसिस. सो दिस इज़ हाउ यू विल राइट द नल हाइपोथेसिस. देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की अगर हम लोग बात करें तो एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, मुझे क्या पूछा है, द इंटेंसिव ट्रेनिंग इज़ यूज़फुल. ट्रेनिंग मेरी यूज़फुल तभी होगी जब स्कोर्स आफ्टर ट्रेनिंग इम्प्रूव होते दिख रहे हो, दैट इज़ स्कोर्स आफ्टर ट्रेनिंग बढ़ रहे हो, then and then I can say that my training was useful. So we'll write it as h1 mu1 is less than mu2. और टेस्ट टाइप हो जाएगा वन टेल टेस्ट, या तो हम लिखते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट. Then level of significance which is my third step, alpha is equal to 0.05. टेस्ट स्टेटिस्टिक की बात करते हैं, t इक्वल टू डी बार अपॉन एस अपॉन अंडर रूट ऑफ n माइनस 1. डी बार इज इक्वल टू -5 विच इज सिग्मा डी बाय n. वी हैव ऑब्टेन्ड दिस वैल्यू. और s की वैल्यू हमारी आई थी 6.94 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n माइनस 1. n था 10 and 10 minus 1. So this value comes out to be -2.16.
Then we'll write mod t is equal to 2.16. देन क्रिटिकल वैल्यू की बात करते हैं तो क्रिटिकल वैल्यू द सेम फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू n माइनस वन, दैट इज़ 10 माइनस वन इक्वल टू 9. अभी मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको बताया है कि कई लोगों को मैंने देखा है मेकिंग द मिस्टेक कि न्यू इक्वल टू 10 लेके वो लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं टेबल में से. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. न्यू है मेरा n माइनस वन विच इज़ 10 माइनस वन, दैट इज़ 9. तो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्थ कॉलम में वैल्यू देखिए, इट कम्स आउट टू बी 1.833. दिस इज़ वन टेल टेस्ट और अल्फ़ा 0.05 है, दैट इज़ वाई फोर्थ कॉलम हमने वैल्यू देखने के लिए यूज़ किया. अभी डिसीजन मेरा हो जाएगा मोड t ग्रेटर दैन t 0.05. That is, null hypothesis is rejected at 5% level of significance. अभी क्योंकि null hypothesis reject हो गया, null hypothesis में मैंने क्या assume किया था कि there is no significant effect of intensive training. अभी null hypothesis ही reject हो गया, इसका मतलब कि ट्रेनिंग की इफ़ेक्ट यूज़फुल थी. So what I'll write is, that is, the training intensive training is useful. You have to write the same thing which is asked to you in the question. So here it was asked intensive training is useful. We'll write it the same way. Now our last test, that is for T test, this will be our last test, which is test of significance for correlation coefficients. अभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज़ अगर मुझे r की वैल्यू स्मॉल r, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं. स्मॉल r दैट इज़ सैम्पल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर मुझे दे दिया गया है, देन आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला टू फाइंड द टेस्ट स्टेटिस्टिक विच इज़ t इक्वल टू r इंटू अंडर रूट ऑफ n माइनस टू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस r स्क्वायर, और न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस टू. लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस. A random sample of 18 pairs of observations from a bivariate normal population gives a correlation coefficient of 0.3. Is it likely that variables are uncorrelated in the population? मुझे पूछा है कि मेरे वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड है या नहीं. Now here, first thing given to me is n मुझे कितना दे दिया है 18. So I'll write n is equal to 18. Second thing that is given to me is कि मेरे सैम्पल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट मुझे दिया है, विच इज़ आई सेड कि हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं. आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू इन माई फर्स्ट वीडियो r इक्वल टू 0.3 दे दिया है. नाउ नल हाइपोथेसिस की बात करें तो नल हाइपोथेसिस h नॉट क्या लिख लेंगे हम लोग, रॉ इज़ इक्वल टू 0. मैंने ये भी आपको बताया था मेरी फर्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग द बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ कि हम लोग पॉपुलेशन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट को रॉ से डिनोट करते हैं. तो व्हाट विल राइट h नॉट में हमें लिखना है दैट रॉ इज़ इक्वल टू 0. दैट इज़ I'll say that कि the variables are uncorrelated. क्योंकि मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट मैं बोल रही हूँ कि 0 है, इसका मतलब क्या है कि मेरे वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड है. अभी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लोग क्या लिखेंगे कि रॉ इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज मुझे ग्रेटर देन लेस देन का कुछ तो दिया नहीं होगा इसमें. या तो मेरे वेरिएबल्स कोरिलेटेड होंगे या तो फिर अनकोरिलेटेड होंगे. तो हम लोगों को ये लिखना है दैट h1 रॉ इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड इट विल बी टू टेल टेस्ट. देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा 0.05 क्वेश्चन में नहीं दिया है, सो आई राइट इट एज अजम्पशन. देन माई फोर्थ स्टेप विच इज़ टेस्ट स्टेटिस्टिक, t इज़ इक्वल टू r इंटू अंडर रूट ऑफ n माइनस टू अपॉन
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ हैं मेरे पास। आर गिवन टू मी इज़ 0.3, एन की वैल्यू है 18, आर स्क्वायर करना है, दैट इज़ 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। सो हेयर इट विल बी 0.3 इंटू अंडर रूट ऑफ 18 माइनस 2 divided by under root of 1 minus 0.3 whole square, and this value comes out to be 1.26. You will write it as mod t equal to 1.26. Then मेरा next step, which is critical value, nu equal to n minus 2. अभी क्रिटिकल वैल्यू न्यू इक्वल टू एन माइनस टू, दैट इज एन है मेरा 18, तो 18 माइनस 2 विच इज 16, 16 की कॉरस्पॉन्डिंग टू टेल टेस्ट, मतलब कौन सा कॉलम हो जाएगा, यू कैन कमेंट। सो इट विल बी थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में हम लोग वैल्यू देखेंगे, तो वो वैल्यू आ रही है मेरी 2.12। नाउ 1.26 इज लेस देन 2.12, दैट इज t इज लेस देन t 0.05. We'll write it as mod t less than t 0.05. That is, null hypothesis is accepted at 5% level of significance. क्योंकि मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है, तो जो सेंटेंस मैंने नल हाइपोथेसिस में लिखा था वही सेम सेंटेंस यहाँ पे लिख लेना है। We had written that the variables are uncorrelated. So here we'll write the same thing, that is the variables are uncorrelated. Let's solve one last example. Find the least value of R in samples of 18 pairs of observations from a bivariate normal population which is significant at 5% level. n की वैल्यू है 18, मुझे कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू पूछी है, दैट इज़ स्मॉल r. आई नीड टू फाइंड न्यू इक्वल टू क्या होता है मेरा, इट इज़ गिवन एज n माइनस 2, दैट इज़ n माइनस 2 विच इज़ 18 माइनस 2 इज़ 16. टू टेल टेस्ट ही होगा, बिकॉज आई सेड कि वेरिएबल्स या तो कोरिलेटेड होते हैं या तो फिर अनकोरिलेटेड होते हैं. तो विल टेक टू टेल टेस्ट और 16. तो टेबल में से 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए 16 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे फाइंड कर लेनी है, दैट इज़ t 0.05. प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने जैसे फाइंड किया, इट इज़ कमिंग एज 2.12. मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स में t 0.05 कैसे ढूंढते हैं वो सिखा दिया है. सो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में वो टेबल नहीं दिखाया था आपको, एंड इसमें भी directly I have written the value that t 0.05 is 2.12 because I have already taught you how you have to find the value using the table. अभी दूसरी चीज़ मुझे ध्यान रखनी है which is कि मेरा mod t वो greater than or equal to t 0.05 हो जाएगा. ये कैसे पता चला, तो मुझे क्वेश्चन में लिखा है find the least value. लीस्ट वैल्यू मतलब ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगा. हम लोग जैसे एटलीस्ट में कंसेप्ट लगाते हैं कि वो वैल्यू मेरी क्या लेंगे हम लोग, ग्रेटर दैन और इक्वल टू. तो इसका मतलब कि मोड टी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू टी 0.05. मोड टी फाइंड करने के लिए मोड टी इज़ इक्वल टू आर इंटू अंडर रूट ऑफ एन माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू t 0.05. t 0.05 की वैल्यू मेरी कितनी है, 2.12. देन मुझे क्या करना है, r इंटू अंडर रूट में n माइनस 2, विच इज़ n माइनस 2 क्या होगा, 18 माइनस 2. अभी क्योंकि मुझे रूट हटाना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल नीड टू स्क्वायर बोथ साइड्स. सो हेयर राइटिंग दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये क्या बन जाएगा, r हो जाएगा मेरा r स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ n माइनस 2 का स्क्वायर अगर होता है तो इट विल बी n माइनस 2, और नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा. सो विल राइट इट एज 1 माइनस आर स्क्वायर.
और सामने की साइड दैट इज़ राइट हैंड साइड पे 2.12 का स्क्वायर होगा तो इट विल बी 4.5. देन 18 माइनस 2, क्योंकि n मेरा 18 है, सो 18 माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4.5 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर में है दैट विल बी मल्टीप्लाइड टू द राइट हैंड साइड. Then 18 minus 2, which is 16. So 16 r square is greater than or equal to 4.5 into 1 minus r square. 4.5 into 1, which is 4.5, minus 4.5 into r square, which is 4.5 r square. मतलब राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट ओपन किया हमने. अभी 16 r square प्लस 4.5 r square हो जाता है मेरा 20.5 r square, which is greater than or equal to 4.5. तो आर स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.22. तो आर क्या हो जाएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ 0.22 फाइंड कर लेंगे. सो आर विल बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.47. सो वी कैन राइट दैट हेंस द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर इज 0.47. So this is how you need to solve the examples that are based on the test of significance for the difference of means. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाए और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इस वीडियो में ले लिए. सो विद दिस वी एंड आर टी टेस्ट. देन माई नेक्स्ट वीडियो दैट आई क्रिएट विल बी ऑन एफ टेस्ट. अगर आप कोई दूसरे एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं एंड आपको कोई डाउट आता है देन यू कैन कमेंट और यू कैन सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ योर डाउट ऑन माई मेल ID, which I have provided here. Please watch all the videos in a sequence to get the most out of it. It will be beneficial to you and it will be helpful for you to understand all of the test in a very easy manner. Please don't forget to like the video and subscribe my channel. Thank you.